ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Everyone together, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So once again, we welcome you all for this another session of Mahabharat. And we are on the 14th episode and the third Parva of Mahabharat, Vana Parva. So before we, as usual, start with the Mahabharata discussion, we are also parallelly studying Lord Shri Krishna's pastimes, his activities, because Lord Shri Krishna appeared almost at the same time when Pandavas had appeared. बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 4 दिन बड़े थे. So it's almost at the same time. So we saw yesterday how Lord Shri Krishna and all the Brajavasis, Nand Maharaj, Yashoda Mai, Rohini, Balram, and all the friends and all the Gopas and all the cows, everyone had moved to Vrindavan because Kamsa was terrorizing the Brajavasis at Gokul. So Brajavasis thought maybe we should change our place and maybe we would have less threat because of Kamsa. However, wasn't the case. Kamsa soon after some time started sending his terrorists, in other words, the demons or the Rakshas. And Aghasur was the third demon sent by Kamsa. We discussed about it, who was a younger brother of Bakasur and Putana. Bakasur and Putana had already been killed by Lord Shri Krishna. And yesterday in our discussion, we saw how Lord Shri Krishna killed Aghasur. The unique thing about the death of Aghasur, or the killing of Aghasur, in the previous cases, which are mentioned in Srimad Bhagavatam, how Lord Shri Krishna killed the demons, Lord Shri Krishna did not use any of his mystic opulences. Putana, he just sucked the milk. Along with that, he also sucked, Lord Shri Krishna sucked the life of Putana. Trinavatra, a twister, the hurricane demon, when he came, this demon had, kidnapped Krishna literally, and he had taken Krishna and he was flying up in the sky, and Lord Shri Krishna, very young boy, with his baby little hands, tender hands, Lord Shri Krishna got hold of the neck of this Trinavatra, and Trinavatra died. Shaktasur, the cart demon, Lord Shri Krishna was just a 1-year-old. His birthday celebration was going on, and Lord Shri Krishna just gently kicked the cart and the demon died. And like that with all of the demons. However, in the case of Aghasur, because Lord Shri Krishna went inside the throat of Aghasur, and now all the calves and all the coward boys have fainted because of the obnoxious smell and complete darkness, Lord Shri Krishna that time showed his opulence and he expanded himself. Such a way that Aghasur got choked, he could not breathe in, and then he died, and then he opened his mouth. After this, Aghasur died, there was a great celebration. Lord Shri Krishna brought back, made everyone conscious again, and they were celebrating. Now it was a time for lunch because they have been away. They had left early in the morning and they had been in the Vrindavan forest for many, many hours. And it was just like an everyday play where Kamsa would send a demon, Krishna would kill the demon, and the demon would come somewhere around 12:30. And by the time Krishna would kill the demon, it would be right time for the lunch. After all the physical exertion and exercise, all the Gopas and Krishna would feel really hungry. So now
the Gopas tell the Krishna, "My dear Lord, we are so hungry. We should not sit and eat somewhere." At that point of time, jitne bhi Gopas say, they went around and they found a very nice place where the soft grass was growing. A huge banyan tree was there, and right at the bank, right at the corner of that banyan tree, Mother Yamuna was flowing. So all the cowherd boys, Krishna, Balram sat down there. So like yesterday, I was telling you, when Aghasur was killed, there were great celebrations in the heaven. All the devtas up to Tapalok, Mahalok, Janalok, all up to the top was celebrating the killing of Aghasur. And Brahma, sitting on the top of the Brahmalok, when he heard the celebration, the sound of the music and the jubilation, Brahma came down and he saw, oh, this little boy, everyone is claiming him to be a supreme person. All the devtas are singing his glories. Is he really a supreme personality Godhead? Let me just see. So at this point in time, when Krishna is sitting down or has sat down with his friends to have his lunch, Brahma is up in the sky and watching the whole Leela. And something very interesting happened. There's a lot of beautiful description about how Krishna would exchange love and affection all through the day, particularly at the time of when you're hungry or at the time when they'll sit down for lunch. So, for instance, imagine you're there by the side of the Supreme Personality of Godhead. Of course, there cannot be any sense of fear or anxiety. There would be only joy and celebration, and that is what is happening right now. Even while they would sit down to eat lunch, they would be playing with each other. And this is how our acharyas explain, or the scriptures explain, what would happen when they would sit down to eat lunch. One Gopa would open his lunch box, and then he'll show what his mother had cooked for him. And he will say, okay, my mother had cooked, let's say, a samosa. And he'll take a bite of a samosa, and then he will say, oh, it's so delicious. And then he would stuff into the mouth of Krishna, or else someone else would say, oh, I want to have this, can I have this samosa? And like that, they will play around. Another Gopa would take out his item and will say, oh, this is such a delicious samosa. But he would take out all the fillings from the samosa. समोसे के अंदर जितना भी जो मसाला भरा होता था उस सब को निकाल कर उसके अंदर फूल को भर के then he would feed to another gopa, and when that another gopa would bite that samosa, it would be very bitter. Like that, they would play around with each other. Okay, Vishwakiran, so that's what I should. Okay, I should speak in Hindi. Yes, Prabhuji, I have received one message from Mihir Panchal. So that's all right. So okay, fine. I'll make Hindi English. I'll at least narrate the story in Hindi. So Hare Krishna. Yes. तो इस प्रकार जब सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के संग बैठते थे प्रसादम लेने के लिए, लंच लेने के लिए, तो एक दूसरे के संग खेला भी करा करते थे. तो कोई गोपा भगवान श्री कृष्ण को खाना खिलाया करता था जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया है, और कई बार भगवान श्री कृष्ण खुद खाकर अपना झूठा किसी और को देते थे, और कई बार गोपा बाकी जो ग्वाल बाल थे अपना झूठा खाया हुआ भगवान श्री कृष्ण या किसी और गोपा को दिया करते थे. इस प्रकार से they would exchange love and they would play with each other. साथ में बताया जाता है कि किस प्रकार से ये लोग साथ में बैठ के खाते थे. भगवान श्री कृष्ण और बलराम बीच में बैठते थे और उनके चारों तरफ सर्कल बनाकर गोपा बैठते थे. तो सारे गोपा तो एक सर्कल में नहीं आ सकते क्योंकि हजारों में गोपा हुआ करते थे, हजारों में सखे हुआ करते थे. तो एक छोटा सर्कल, उसके बाद उसके ऊपर बड़ा सर्कल, फिर तीसरा बड़ा सर्कल, ऐसे करके अनेक अनेक सर्कल बनाकर सब गोपा एक साथ बैठ के प्रसाद लिया करते थे. तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी वो हैं जो वेद उपनिषद का ज्ञान संपूर्ण तरीके से जानते हैं. और जब ब्रह्मा जी ने देखा और बोले ये वेद के नीति के अनुसार है, वेद के नियमों के अनुसार है, कैसे अगर ये छोटा सा बालक अगर ईश्वर है, परमात्मा है, परम भगवान है, हमारे वेद हमारे उपनिषद बताते हैं कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए. अगर आप मंदिर में भगवान की सेवा देखेंगे तो कितने प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है. और यहाँ पे तो एक साधारण मनुष्य के पुत्र के जैसे ये छोटा सा बालक अपने सखों के संग संबंध बना रहा है या खेल रहा है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते. तो उस समय ब्रह्मा ने सोचा क्यों ना जो लोग इनको कहते हैं यही परम ईश्वर हैं, इनकी एक छोटी सी परीक्षा ली जाए.
उस चीज को सोचते हुए तो आचार्य यहाँ पे बताते हैं, हमारे आचार्यवर, कि ब्रह्मा के अंदर थोड़ा सा अहंकार था। किस प्रकार का अहंकार था? ब्रह्मा ये सोच रहे थे, अरे मैंने इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि के इस पूरे ब्रह्मांड के, उस सृष्टि का एक एक कोना मैं जानता हूं, यहाँ पे भगवान है और मुझे नहीं पता चलेगा भगवान आके बैठे हैं। और भगवान ऐसी लीला रच रहे हैं, वो लीला जिसमें मैं भी भाग नहीं ले सकता। उनका सबसे बड़ा सेवक, उनके द्वारा निर्धारित मुझे ये सेवा है कि मैं संसार का क्रिएशन करूं, पालन पोषण करूं। भगवान मेरे संग कभी ऐसा लेन देन नहीं करते। यहाँ तक कि अगर मुझे भगवान से मिलना जाना पड़े तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्षीर सागर के पास, क्षीर सागर के तट पे जाकर पुरुष सुक्त प्रेयर्स बोलकर भगवान की प्रार्थना करके फिर भगवान अपना दर्शन देते हैं। और कोई गारंटी नहीं है हर बार दर्शन दें, कई बार तो दर्शन भी नहीं देते, केवल आवाज, केवल ध्वनि से अपना संदेश मुझे सुनाते हैं। और यहाँ देखो, ये वैश्य समाज के पुरुषों के जो ये छोटे छोटे बालक हैं, इस प्रकार ईश्वर के संग खेल रहे हैं। स्वाभाविक बात है, ये छोटा सा बालक ईश्वर नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ा योगी होगा, शक्तिशाली मायावी होगा, पर ये ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इनके बारे में नहीं जानता या समझ पाया। तो उस प्रकार के अहंकार से सोच के कि भगवान की सारी लीलाओं को मैं समझ सकता हूँ, भगवान जो भी करेंगे वो मुझे सब पता रहेगा क्योंकि मैं ये सृष्टि करता हूँ, उस अहंकार से ब्रह्मा जी गलती कर बैठते हैं। और जब सब ग्वाल बाल प्रसादम ले रहे होते हैं, उस समय सारी बछड़े जंगल में अदर बछड़े होते हैं, अगर आप उनको खुला छोड़ दो तो इधर उधर फिरते हुए घास खाते हुए घूमते रहते हैं। उसी समय सारे बछड़े ऐसे करके जंगल में धीरे धीरे अंदर चले गए और ब्रह्मा जी वहां आते हैं और सारे बछड़ों का अपहरण कर लेते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण, जब सबने खाना खा लिया है, तो जब भी डेली की लीला होती थी, भगवान लंच लिया करते थे, सारे सखे लंच लिया करते थे, और लंच और दोपहर का खाना खाने के बाद वहां पे विश्राम किया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और अपनी बांसुरी को उठाकर मधुर ध्वनि या संगीत बजाते हैं। सारे ग्वाल बाल उठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग यहीं बैठिए, मैं अंदर से जंगल में जाकर सारे बछड़ों को लेकर आता हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जंगल में अंदर जाते हैं, जंगल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ ब्रह्मा इस समय उस जगह आ जाते हैं जहाँ पे सारे ग्वाल बाल हैं। वहां पे ब्रह्मा आके सारे ग्वाल बालों का भी अपहरण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जंगल में अंदर जाते तो वहां कोई बछड़े नहीं। वापस आते हैं कृष्ण तो देखते हैं वहां कोई ग्वाल बाल भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं क्या चल रहा है, कौन इसके पीछे है। तो उस समय ऑलरेडी समय हो जाता है भगवान का और सब ग्वाल बाल का वापस घर जाने का। और भगवान सोच रहे हैं ये ब्रह्मा ने क्या करा है। ब्रह्मा अपने अपने परमेश्वर, अपने मालिक का परीक्षा लेना चाहता है, वो ऐसी भूल कर बैठा है, तो उसको तो सिखानी पड़ेगी, उसको तो लेसन सिखाना ही पड़ेगा। और अब घर जाने का भी समय हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने आप को हजारों हजारों ग्वाल बाल के रूप में अवतरित करते हैं। साथ ही साथ जितने बछड़े होते हैं उनके रूप में भी अपने आप को एक्सपेंड करते हैं या अवतरित करते हैं। अर्थात जिस प्रकार के, जिस ग्वाल बाल ने जिस प्रकार के कपड़े, जिस प्रकार के गहने, जिस साइज की उसकी बांसुरी थी, जिस साइज की उसकी छड़ी थी बछड़ों को संभालने के लिए, एक उसी प्रकार से एकदम उस जैसे ही रूप में भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल बाल और सब बछड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अनेक कृष्णों के संग, अनेक विष्णु अवतार के संग, जो अभी ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण किया हुआ है, उनके संग भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की तरफ वापस चल पड़ते हैं। और जैसे ही वृंदावन वापस पहुंचते हैं तो हर शाम को जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों के संग वापस आते थे तो सब ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आते थे, खेलते हुए। और आज के दिन जब कृष्ण और बाकी सब ग्वाल बाल बांसुरी बजा रहे हैं, आज उन ग्वाल बाल की बांसुरियों की ध्वनि में एक अलग ही आकर्षण है। सभी के माता पिता भागते हुए आते हैं। रोजाना जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल बछड़ों के संग वापस आते थे तो जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते थे तो सारे के सारे माता पिता भागते हुए आते थे
और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेते थे। और आज ऐसा नहीं हुआ। सारे भागते हुए आए, सोचा था कि वो कृष्ण का दर्शन लेंगे, पर जैसे ही भागते हुए आए, सब जाके अपने बच्चों से आलिंगन करने लगे। और यहाँ पे अब सारे बच्चे अपने माता पिता के संग और सारे बच्चे अपने गाय के संग तकरीबन 1 साल के लिए रहते हैं। और सब लोग और सब बच्चे और सब बछड़े और सब ब्रजवासी उस प्रकार से एक स्पेशल what should I say, they're experiencing a great joy and jubilation, क्योंकि आज तक उनको ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। जितने भी ब्रजवासी थे सब कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे, एंड दे यूज्ड टू लव कृष्ण, क्योंकि जो नंद महाराज थे वो राजा थे, उनका पुत्र आगे जाने वाला आगे बढ़ने वाला राजा था। तो इसलिए जितनी भी प्रजा थी सब कृष्ण को एक उस नजरिए से भी प्रेम करते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण खुद साक्षात इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो सभी उनके भक्तों का उनके प्रति आकर्षण बहुत अधिक था। तो इस प्रकार एक दिन की बात है कि जब ये लीला समाप्त होने वाली थी, उससे सिर्फ 5 या 6 दिन पहले की बात है, मतलब 1 साल खत्म होने वाला है। एक दिन कृष्णा और बलराम पहाड़ी के नीचे खड़े हुए हैं, उनके आसपास सारे बछड़े हैं और साथ में सारे ग्वाल बाल भी हैं, और पहाड़ी के ऊपर सारी गैया हैं और ग्वाल बालों के पिता जो बड़े गोपा हैं वो सब पहाड़ी पर हैं जहां पे गैया को चराने के लिए लेकर गए हुए हैं। और बलराम जी आज एक दृश्य को देखकर बड़े ही अचंभित, बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं। बलराम जी देखते हैं जैसे ही गायों की नजर पहाड़ी पे जो गाय है, जैसे ही उन गायों की नजर अपने बछड़ों पर पड़ती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, चीखते लगती हैं और बहुत जोर से भागते हुए पहाड़ी से नीचे उतरते हुए भागती हुई आ रही हैं। केवल भागती हुई नहीं आ रही, जब गाय का अपने बछड़े के प्रति प्रेम आता है तो उसका जो मिल्क बैग होता है वो भर जाता है। तो बताते हैं कि गाय का बछड़ों को देखकर इतना प्रेम उभरा, जो उनका मिल्क बैग था इतना भर चुका था कि मानो जब वो कूदते हुए पहाड़ी से नीचे उतर रहे हो तो मानो जैसे इंद्रदेव पहाड़ पर दूध की बरसात कर रहे हो। पूरा का पूरा पहाड़ दूध की नदी से बहने लगा। क्यों? क्योंकि जो गैया का जो कहते हैं मिल्क बैग था, इस प्रकार से दूध से भरा हुआ था कि बछड़ों के पहुंचने के पहले ही उससे दूध निकल रहा था। एंड बलराम जी बड़े परेशान, ये क्या हो रहा है। और दूसरी आश्चर्यजनक बात ये थी, जो बछड़े, जिन बछड़ों को लेकर कृष्ण बलराम बाकी ग्वाल बाल आए थे, वो अगर किसी को गाय के बारे में नॉलेज हो, हमारे गौशाला के जो चलाते हैं रिंकू और अशोक प्रभु, शायद उनको पता होगा, जो गाय है जो अपना दूध होती है वो सबसे अधिक अपने जो छोटा बछड़ा होता है उसके लिए देती है, उसको देती है। जब बछड़ा वो बड़ा हो जाता है तो पहली बार जब बछड़ा बड़ा हो जाता है ना ही तो उसको अधिक दूध की जरूरत होती है और ना ही गाय उसको ज्यादा दूध देती है। तो बलराम जी बड़े आश्चर्यचकित हैं, ये जो हमारे संग बछड़े हैं ये तो बड़े बछड़े हैं, और इन सब गायों ने अभी अभी कुछ समय पहले कुछ और बछड़ों को जन्म दिया है जो बहुत छोटे हैं, उनको वो ऑलरेडी दूध पिला चुकी हैं। तो आज इन बछड़ों को, बड़े बछड़ों को देखकर ऐसा क्या हुआ है कि सारी की सारी गायें उनके पास भागती हुई आ रही हैं। तो सारी की सारी गायें पहाड़ी से नीचे उतर के आई, बड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं, उनके शरीर को चाट चाट कर प्रेम कर रही हैं, और वो जो बछड़े हैं वो भी अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। और उन गाय के पीछे भागे भागे आ रहे हैं सारे बड़े गोपा, बड़े ग्वाल, मतलब बड़े ब्रजवासी, जिनके बच्चे भी नीचे थे। जो ब्रजवासी जब नीचे भागे भागे आ रहे थे उनको लग रहा था अरे क्या हुआ है, तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, हमारे बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई कि हम गायों को नहीं संभाल पा रहे। तो उस चिंता से वो भागते हुए नीचे आए, और बलराम जी देख रहे हैं कि सब के सब बड़े चिंता में हैं। बट जैसे ही वो सारे के सारे गोपा नीचे आते हैं, जैसे ही वो अपने पुत्रों को देखते हैं, ग्वाल बालकों को देखते हैं, उनके चेहरे से जितनी भी टेंशन है, जितनी भी एंजाइटी है, सब खत्म हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं।
सब जाकर अपने बालकों को आलिंगन करके अपनी गोदी में बिठाकर उनके सिर को सहला रहे हैं। और बलराम जी बड़े ही परेशान हैं। उन्होंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि सब कृष्ण को प्रेम करते थे और कृष्ण यहाँ पर खड़े भी हैं और कोई कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हर ग्वाला अपने पुत्र को प्रेम कर रहा है, हर गाय अपने बड़े बछड़े को प्रेम कर रही है, पर कृष्ण की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो उस समय बलराम जी कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि ये तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसा तो कभी तक ब्रज में हुआ नहीं है। तुम्हारे होते हुए भी इस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को ऐसे प्रेम कर रहा है जैसे जीवन में पहली बार मिला हो। क्या चल रहा है? तो बलराम जी को कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा ने क्या किया है। और बलराम जी को कुछ क्यों नहीं पता था? तो चलिए, 1 साल पहले जब ब्रह्मा ने आकर सारे ग्वाल बाल और बछड़ों का अपहरण किया था, उस दिन बलराम जी नहीं थे। उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था और जन्मदिन होने के कारण बलराम जी, रोहिणी माता ने बलराम जी को जंगल में नहीं भेजा था। तो उस दिन कृष्ण खुद अकेले गए थे, तो बलराम जी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो आज बलराम जी कृष्ण से पूछ बैठते हैं, ऐसा क्या हुआ है, किस कारणवश इनके बीच में इतना प्रेम है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बताते हैं कैसे कैसे ब्रह्मा ने अब से 1 साल पहले सारे ग्वाल बाल और बच्चों का अपहरण किया था। इसी बीच में ये लीला यहाँ खत्म होती है और ब्रह्मा जी वापस आते हैं, ये सोचकर कि ये जो छोटा मायावी लड़का है अपनी गलती समझ गया होगा और दर दर भटक रहा होगा कि उसके दोस्त कहाँ गए, उसके बछड़े कहाँ गए। हो सकता है शायद मेरी प्रार्थना कर रहा हो, आराधना कर रहा हो, क्योंकि इस दुनिया में सब जानते हैं परम पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा सबका करता धरता है। तो हो सकता है वो, उसके माता पिता सब मेरी आराधना करने में लगे हों। तो चलिए, मैं जाकर उसको अपना दर्शन देकर उसको उसकी चिंता से मुक्त कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी बड़े अहंकार से, with a sense of pride, he comes down to Brajabhumi, and when he comes down, he's still in the sky, and when he comes down there, and when he looks down in the Brajamandal, and he looks down in the forest of Vrindavan, Brahma ji is shocked. उनके चारों सिर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे ये क्या, मैंने तो इन सब बछड़ों का अपहरण किया था। उसी समय तुरंत ब्रह्मा जी उस गुफा में जाते हैं देखने के लिए कि क्या बछड़े, क्या वो ग्वाल बाल अभी भी हैं। उस गुफा का दरवाजा खोलते हैं, पत्थर हटाते हैं, अंदर घुसते हैं, देखते हैं अरे सारे के सारे बछड़े यहीं पर हैं, सारे के सारे ग्वाल बाल यहीं हैं। फिर ब्रह्मा जी वापस जाते हैं, फिर देखते हैं और ब्रह्मा जी का सिर पूर्ण तरीके से चकरा जाता है। ब्रह्मा जी बस बेहोश होकर गिरने ही वाले होते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अभी अपनी विभूति का दर्शन देते हैं। जैसे आप फोटो में अगर ध्यान से देखेंगे, बहुत खूबसूरत फोटो है। आपको दिखाई दे रहा है भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठे हैं और नीचे उनके बराबर देखेंगे ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, और उनमें से उनको विष्णु का रूप। तो ब्रह्मा को उस समय इस प्रकार का दर्शन नजर आ रहा है, जहाँ जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, सब विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। और तब ब्रह्मा को समझ आता है, अरे ये तो परम पिता, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है और मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है। ब्रह्मा बड़े ही विनम्र होते हैं, बड़े ही दुखी दुखी, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उनको पता है उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने किसी अन्य देवता या किसी साधारण मनुष्य या किसी राक्षस या किसी गंधर्व की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। उन्होंने परम पिता, परमेश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने परीक्षा में करा भी क्या, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सखे और बछड़ों को उनसे अगवा कर लिया, उनको इतना कष्ट दिया। ये सोचकर ब्रह्मा जी बड़े ही विचलित हो जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और ब्रह्मा जी वहां आते हैं, पूरा दंडवत मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत खूबसूरत प्रार्थनाएं करते हुए क्षमा की, कहते हैं, क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझसे माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और ये जो प्रेयर्स हैं जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनको ब्रह्म संहिता कहा जाता है।
मैं वैसे सोच रहा था कुछ प्रेयर्स को यहाँ मेंशन करूं, बट शायद उसमें समय लग जाता, तो मैंने वो प्रेयर्स यहाँ मेंशन नहीं करी हैं। पर अगर आपको मौका पड़े तो आप देख सकते हैं ब्रह्म संहिता। उसका हम पर आज के समय में केवल 5वां चैप्टर ही हमारे पास अवेलेबल है, बाकी सारी प्रेयर्स लुप्त हो चुकी हैं। और उस 5वें चैप्टर की सबसे पहली प्रेयर कहती है ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये उन्हीं ब्रह्मा का रियलाइजेशन है, उनकी एक्सपीरियंस कहिए या उनका ये वही ब्रह्मा है जो इस ग्वाल बाल की परीक्षा लेना चाहते थे कि यह सही में ईश्वर है या नहीं। वही ब्रह्मा आज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। अगर कोई परम ईश्वर है तो वो यही कृष्ण है। उनका विग्रह, उनका जो शरीर है सच्चित आनंद का बना हुआ है, हमारे जैसे ये भौतिक पदार्थ का नहीं बना हुआ है। अनादिरादिर गोविंदा, उनका कोई कॉज नहीं है, वो सबके कॉज है। अनादिर, वो सबसे जो परम पुरुष, जो सबसे प्रथम पुरुष, वही गोविंद है, कृष्ण है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वाई सर्व कारण कारणम? बिकॉज ब्रह्मा को लग रहा था सब मेरे द्वारा ही तो होता है, कितना बड़ा मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहते नहीं प्रभु, सर्व कारण मैं नहीं, सर्व कारण कारणम आप हैं। आप ही के द्वारा मुझे जो वरदान, मुझे जो फैसिलिटीज, मुझे जो ज्ञान मिला है, आपने जो मुझे सेवा दी है, उसी के बल पर मैं ये सृष्टि का निर्माण और सृष्टि में कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से बहुत खूबसूरत प्रार्थनाएं करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को माफ कर देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, वो ये है जो हमारे आचार्यवर बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा के 4 सिर होते हुए भी, इस ब्रह्मांड के एक तरीके से क्रिएटर होते हुए भी, ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानने वाले ब्रह्मा अपने परमपिता ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए। क्या ब्रह्मा को नहीं पता था कि कृष्ण अवतरित होने वाले हैं? क्या ब्रह्मा जब वसुदेव देवकी जब कालाग्रह में थे, तो जब देवकी के से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, तो क्या ब्रह्मा जी वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी? सब कुछ करा था। शिव जी थे, ब्रह्मा थे, दुर्गा थी, सब देवी देवताओं ने जाकर देवकी के सामने प्रार्थना करी थी। अनेक प्रकार की प्रेयर्स बोल के, अनेक प्रकार के गुणगान करके भगवान को का वेलकम करा था। तो ब्रह्मा को पता था सब कुछ। अगर ब्रह्मा को सब कुछ पता था तो वो भूल कैसे गया कि जो ये बालक है वही परम ईश्वर है, ये वही बालक है जो देवकी का पुत्र था, जो आज नंद और यशोदा मैया के संग वृंदावन में रह रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि ब्रह्मा के अंदर अहंकार आ गया था। और भगवान श्री कृष्ण को अहंकार बिल्कुल नहीं भाता। अगर वो जब देखते हैं कि उनके भक्तों के अंदर अहंकार आ जाता है, तो भगवान अपनी शक्ति उनसे छीन लेते हैं, अपना ज्ञान उनसे छीन लेते हैं। और उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है महाभारत के अंदर दुर्योधन। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप दिखाने के बाद भी वो मूर्ख कृष्ण को भगवान मानने से तैयार नहीं है। चौथे दिन युद्ध के जब भीम दुर्योधन के 14 भाइयों का मृत्यु वध कर देता है, दुर्योधन रोते रोते भीष्म पितामह के पास जाता है, पूछता है, हे प्रभु, हे पिता, हे परम पिता, मेरे संग ही क्यों बुरा होता है? उस समय भीष्म पितामह कृष्ण की स्तुति करते बताते हैं कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां वहां विजय होगी ही। और उस समय दुर्योधन पूछता है, क्या आप मुझे विस्तार में बताएंगे कैसे कृष्ण ही भगवान है? और भीष्म पितामह सब कुछ बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कैसे वही नर नारायण ऋषि हैं, कैसे वही विष्णु है। इतना सब होने के बाद क्या ये दुर्योधन राजसूय यज्ञ में नहीं था, जहां पे भीष्म पितामह ने सबके सामने कृष्ण को इस दुनिया का सबसे महान और सबसे वरिष्ठ, ये कहिए उनको एक तरीके से सम्मानित किया था कि परम ईश्वर इस दुनिया में कोई है तो भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन भी था राजसूय यज्ञ में, दुर्योधन के सामने बार बार, और खुद उसने आंखों से देखा और कितने अनेक संतों से सुना भी कि कृष्ण ही भगवान है।
क्यों दुर्योधन को समझ नहीं आया कि जो कृष्ण जो अर्जुन के संग है वो ही भगवान है? क्या कारण था? और वो कारण था उसका अहंकार। और उसी अहंकार के कारण दुर्योधन कभी भी भगवान को नहीं समझ पाया, और उसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी से भी वो गलती हो गई। तो जब तक भक्तों के अंदर या जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकता। चाहे कितना ही भगवान के बारे में सुने, चाहे कितना ही उसके संग ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, चाहे आप उसको कितना ही डिस्कवर योरसेल्फ या व्हाट इज दैट जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स दें, उसको विस्तार में समझाएं कि कैसे हमारा जीवन हमारी इच्छाओं से नहीं चलता, साथ ही साथ ऐसी कई प्रकार की दिव्य शक्तियां जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं, सब कुछ समझते हुए भी व्यक्ति फिर भी नहीं समझता कि भगवान है और कौन है भगवान। तो इस प्रकार इस लीला से ये हमें शिक्षा मिलती है। ब्रह्मा जी कृष्ण से आज्ञा लेते हैं, वापस जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी आगे अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं। तो चलिए, हम दुर्योधन की बात कर रहे थे, तो दुर्योधन से हम महाभारत की तरफ चलते हैं। और कल हमने महाभारत में कई चीजों के ऊपर चर्चा करी थी। तो आज महाभारत की आगे लीला का वर्णन करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग बताना चाहेंगे कल महाभारत में क्या हमने चर्चा करी थी? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? आई मीन बिफोर दैट इट इज ओनली पॉसिबल अगर आप लोग का कैमरा ऑन है, एंड देन आई कैन सी योर हैंड, सो आई कैन गिव यू और मेक यू अनम्यूट। So by the way, that was the reason, I guess I missed the point. इसलिए एक साल तक किसी को ब्रज में पता नहीं था कि अगासुर का वध हुआ है, क्योंकि अगले एक साल तक भगवान श्री कृष्ण ही थे, सब ग्वाल और बछड़ों के रूप में। That was the whole reason. So anyone wants to share anything? What were the things that we discussed yesterday? हमने कल किस बारे में चर्चा करी थी? महाभारत की किन कहानियों के बारे में? कल हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करी थी। Anyone wants to give a try? Yes, Mother Chitra, I see your hand up. You can unmute yourself, please. Yeah, when Draupadi is asking Krishna that why they had to go through all these hardships. Okay. भगवान श्री कृष्ण पांडवों से काम्य वन में मिलने आते हैं। द्रौपदी कृष्ण से प्रश्न पूछती हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? Yeah, when Draupadi is asking Krishna, your voice is a little faint, Mother Chitra. Why they had to go through all these hardships? Yes. Yes, audible. Go ahead. Yeah, Shalva was killed by Krishna for destructing Dwarka by his alien ship at that time. हमने कल alien ship के बारे में भी बात करी थी। Okay, all right. Anything else? Anyone wants to speak up? I guess you can speak up. That will be quick to take inputs. Somebody is typing in. How Bhima killed Kirmara Asur. Okay. What else did we discuss yesterday? Mayurika. Bhishma killed Agasur. No. Bhishma, the Krishna killed Agasur. Shikhar. Duryodhana gets cursed by Maitreya Muni. Okay. Krishna meets Pandava. All right. पर इन सबसे पहले हमने एक बहुत प्रमुख सब्जेक्ट पे विषय पे चर्चा करी थी। किसी को याद है? हमने दुर्योधन के जीवन शैली और युधिष्ठिर महाराज के जीवन शैली के ऊपर चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करी थी। Anyone remembers that? 4 karmas that we should not do. Karmas, okay. What else? Odh, lobh, and lust. 4 things you are. No, that was no meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. No gambling. So Krishna tells that to Yudhishthira Maharaj. What was his mistake?
हमने कल महाभारत के सेशन के शुरुआत में दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के जीवन को लेकर कुछ चर्चा करी थी. Okay. I don't know why you all are shy of speaking, because I can't see any one of you. Your cameras are off. So let's see what you're typing in. Difference in attitude of people believe in God and one who do not. Yes. Okay, let me give some recap. See, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हर कोई व्यक्ति जीवन में सुख की तलाश कर रहा है. और आज के नजरिए के अनुसार सुख की प्राप्ति क्या है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे. Now you remember? Sukh. What was the point? What was the main point about it? And we started our discussion yesterday. Were Kauravas happy? पांडवों के संग, उनके संग इतना बुरा करके उनसे सब कुछ छीनने के बाद क्या कौरवास खुश थे? क्योंकि आज के समाज में हमें आज की एजुकेशन से ये सीखने को मिलता है कि जितना व्यक्ति धन संपत्ति कमाएगा वो उतना ही खुश होगा. हमने उस पर कल चर्चा करी थी कि कैसे सुख और दुख मन की स्थिति पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति का मन विचलित रहता है. कैसे विचलित है? जो व्यक्ति भगवान में जिनकी आस्था नहीं, विश्वास नहीं, उस हर व्यक्ति के मन में एक प्रकार का भय रहता है. जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, इकट्ठा करा है, कहीं मुझसे छीन ना लिया जाए. और दूसरा भय, जो व्यक्ति काम करता है उसके अंदर दूसरा भय भी होता है. दूसरा भय क्या होता है? वो भय ये होता है कि मैंने गलत काम तो करा है, कल कभी ना कभी मुझे उस कर्मों के लिए दंड मिलेगा. उसी प्रकार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन सब बड़े दुखी थे कि जब ये पांडव 13 साल के बाद वापस आएंगे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे. तो अंत में हम इस बात की यही चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार व्यक्ति अधिक से अधिक कमा कर या अधिक से अधिक इकट्ठा करके खुश नहीं होता. व्यक्ति सही मायने में वही खुश हो सकता है जो धर्म का पालन करता है. और धर्म की परिभाषा क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्सजे. सही मायने में धर्म की परिभाषा वही है जिस कर्म से, जिस कार्य से अगर व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सके, भगवान से प्रेम कर सके, भगवान के प्रति भक्ति कर सके, सही मायने में उसी को धर्म कहा जाता है. तो हर व्यक्ति का काम है कि ऐसे धर्म का पालन करना. अगर वो धर्म का पालन करता है तो कितनी ही प्रकार की परेशानियां क्यों ना है. युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितना गलत हुआ, फिर भी युधिष्ठिर महाराज पांडव जंगल में रह के भी संतुष्ट थे, सब कुछ खोने के बाद भी संतुष्ट थे. यहाँ दुर्योधन धृतराष्ट्र सब कुछ पाने के बाद भी दुखी थे. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे. इसको थोड़ा समझने के लिए हम सबको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के समाज में के द्वारा सिखाई हुई शिक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध है. क्योंकि आज हमें सिखाया जाता है वरी नॉट, आप कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से पैसा कमाओ, धन कमाओ, प्रॉपर्टी लो, जितना संपत्ति कमा सकते हो वो करो, जितना होगा उतने सुख रहोगे. दैट इज नॉट द पॉइंट. क्योंकि व्यक्ति आजकल पैसा कमाने के लिए या संपत्ति इकट्ठा करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर्म कर बैठता है. और आजकल तो वैसे भी ज्यादातर लोग नास्तिक हैं. इन अदर वर्ड्स एथिस्ट. दे डोंट नो व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड एंड व्हाट इज धर्म. इसलिए इस प्रकार से सब व्यक्ति ही दुखी है. तो धर्म और अधर्म के ऊपर बात हुई थी और हमने अंत में यही कहा था कि अगर कोई धर्म का पालन करता है तो धर्म उसकी सुरक्षा करता है. वर्ड्स, if somebody protects dharma, then dharma protects that person. और वही महाभारत की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है. महाभारत में एक वचन है जो कई बार रिपीट हुआ है और वो वचन है यतो धर्मस् ततो जयः. I repeat again, a very very famous statement. ये केवल श्लोक का एक चौथाई पंक्ति है. यतो धर्मस् ततो जयः, जिसका अर्थ है जो धर्म का पालन करेगा वो हमेशा ही विजय प्राप्त करेगा. और आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पंक्ति है, कहाँ पे उपयोग होती है? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हम अपने देश के चिन्ह के बारे में बोलें तो वहां पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है. राइट? वी ऑल रिमेंबर और रिकॉल इट? आई डोंट नो, हाउ डू आई नो यू आर? यस प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी. Okay, there's a disturbance in my sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Is that okay now?
विश्वकर्मा प्रभु? Yes, Prabhuji. Yeah. ओके, तो सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, अशोक चक्र के नीचे लिखा रहता है, द ट्रुथ इज विक्टोरियस। बट जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है, एंड हियर इज द लोगो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उसमें नीचे देखेंगे तो उस पे क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस ततो जयः। एंड दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज लोगो, जहां बताया गया है, जहां ये महाभारत में सबसे अधिक बार कोई अगर पंक्ति का उपयोग हुआ है वो यही है। और वो क्या है? जब जहां धर्म होता है वहीं विजय प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण, मैं भगवान श्री कृष्ण नहीं कहूंगा, संजय, जब भगवद गीता समाप्त होती है तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय तुम्हारा क्या निर्णय है? ये पूरी भगवद गीता सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? क्या अर्जुन सही में युद्ध करेगा? क्या अर्जुन या क्या मेरे पुत्रों का सही में सर्वनाश होगा? और या अर्जुन भगवान कृष्ण की बात का उल्लंघन करते हुए जंगल चला जाएगा? उस समय संजय बिल्कुल इसी प्रकार का स्टेटमेंट बोलते हैं। और संजय कहते हैं, ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विजयो भूभूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतिर मीन्स मेरी सोच के अनुसार, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर भी योग ईश्वर मास्टर ऑफ मिस्टिक्स भगवान श्री कृष्ण होंगे, यत्र पार्थो, पार्थ मीन्स सन ऑफ रथा, जहां पे भी अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन होंगे, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा, मेरे अनुसार वहां पर हमेशा 4 चीजें उपलब्ध होंगी। क्या? श्री, विजय, भूतिर ऑपुलेंस, एंड ध्रुवा नीति मीन्स मोरालिटी। अतः संजय कहता है कि जहां पे अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं वहां विजय होगी ही होगी। वहां साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, वहां सभी प्रकार के ऑपुलेंसेस हैं, और वहां पे मोरालिटी भी है। इस चीज को सुनकर धृतराष्ट्र बड़े ही निराश हो जाते हैं। संजय का कहने का तात्पर्य यही था कि ओ वृद्ध व्यक्ति, ओ मूर्ख आदमी, तुम्हारे पुत्र जो कुकर्मी है, अधर्मी है, कभी भी युद्ध नहीं जीतने वाले। सो संजय आल्सो सेज द सेम थिंग, जिसमें हम कल चर्चा कर रहे थे, जो हमने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लोगो दिखाया। जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं सच्ची सफलता है, वहीं सच्चा सुख है। एंड दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, कि कैसे हमें अपने जीवन में थोड़ा निर्णय लेना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या हम दुर्योधन के द्वारा जिस प्रकार से उसने अपने जीवन जिया था, अपने सुख के लिए उसने केवल जीवन जिया था, या युधिष्ठिर महाराज का जैसे जीवन जीना चाहिए, जो धर्म को समझते हुए, भगवान को समझते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, जिन्होंने समाज की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करा था। इस पे हम आज और आगे चर्चा करेंगे जब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि कैसे व्यासदेव दुर्योधन को पांडवों पे हमला करने से रोकते हैं, कैसे दुर्योधन को मैत्री मुनि से श्राप मिलता है, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलते हैं जंगल में, और साथ ही साथ कैसे वो एलियन शिप जो कि हमारे शाल्वा को भगवान शिव ने दी थी, और भगवान शिव किन किन बार किस किस समय पे महाभारत में उनका बार बार वर्णन आता है, कल हमने उन चीजों पे चर्चा करी थी। तो चलिए महाभारत में आगे देखते हैं कि काम्यका वन में और अब पांडव क्या कर रहे हैं। इसके आगे कहानी आती है कि कैसे एक दिन जब ये सारे पांडव उस काम्यका वन में रह रहे होते हैं, तो एक बहुत ही एंशियंट मतलब क्या कहूंगा मैं, पुराने, आई डोंट नो हाउ डू ट्रांसलेट इन हिंदी, बट बहुत ही ओल्ड, वेरी एंशियंट सेज, जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि, वहां पे पांडवों के सामने आते हैं। और मार्कंडेय ऋषि की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। चलिए समय है तो मैं सारांश में समझाता हूँ। जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ था, जो जिनके इनके माता पिता थे, उनके माता पिता ने बहुत तपस्या करी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि आपको ऐसे ऐसे आपका पुत्र होगा। और जब उनका पुत्र हुआ था तो भगवान शिव ने बताया था कि उस पुत्र की उम्र केवल 16 साल की रहेगी।
बहुत ही भव्यशाली, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बुद्धिशाली आपका पुत्र होगा, पर केवल उसका जीवन 16 साल का होगा। तो चलो माता पिता खुश थे कि कम से कम पुत्र तो प्राप्त हुआ, पुत्र का सुख तो मिलेगा। उस प्रकार से वो लोग सब जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे ही ये मार्कंडेय और मार्कंडेय ऋषि बड़े हुए और जब 16 साल की उनकी उम्र होने को आई, तो माता पिता उनसे ये सत्य छुपा नहीं पाए और एक दिन रोते हुए बड़े बेचारे दुखी थे कि हमारा पुत्र 16 साल का होने वाला है और उसका जीवन, जो ये शरीर उनको मिला है, उनका जीवन समाप्त होने वाला है। तो जब मार्कंडेय ऋषि वहां पहुंचते हैं, अपने माता पिता को ऐसे दुखी देखते तो उनसे पूछ बैठते हैं, हे माता, हे पिताश्री, आप क्यों दुखी हैं? तो उस समय उनके माता पिता उनको बताते हैं उनकी जन्म की कहानी। तो क्योंकि मार्कंडेय बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, तो बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं मृत्यु को पराजय करके दिखाऊंगा। और वो कहकर जंगल में चले जाते हैं और वहां पर भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देते हैं। बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और कुछ समय बाद जैसे ही 16 साल के होते हैं, यमराज जी अपने यमदूतों को भेज देते हैं। यमदूत भी आते हैं मार्कंडेय को लेने के लिए। मार्कंडेय जी की चमक और उनके इफल्जेंस को देखकर वो यमदूत बेचारे घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। और यमदूत कहते हैं कि यमराज जी, हम तो नहीं लेकर आ पाएंगे, आप ही जाइए। तो फिर यमराज जी खुद आते हैं मार्कंडेय को लेने के लिए। और जब वो आते हैं और देखते हैं कैसे वो व्यक्ति, एक छोटा सा बालक, शिव की ऐसी आराधना कर रहा है, कड़ी तपस्या कर रहा है, तो घबराते, उनको थोड़ा डर है, कोई मामूली बालक नहीं है। घबराते हुए अपना जो रस्सी है जिससे आत्मा को खींचा जाता है, वो इस बालक की तरफ फेंकते हैं। जैसे ही बालक की तरफ फेंकते हैं, वो बालक भगवान शिव की शिवलिंग जिसकी आराधना कर रहा था, शिवलिंग को जोर से पकड़ लेते हैं। और यहाँ यमराज जी बालक को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं और वहां पे बालक ने शिवलिंग को पकड़ा हुआ है। उसी समय शिवलिंग को तोड़ते हुए वहां से भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव जी यमराज को वहां से भगा देते हैं। और फिर शिव जी इस मार्कंडेय को वरदान देते हैं। क्या कहते हैं उसको? I was trying to think the word in Hindi. Anyways, so Lord Shiva gives a boon that let you be eternal. You know, एक बहुत अच्छा blessing है, हिंदी में उसको कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रही। Anyways, उसको क्या exactly translate करेंगे? But Lord Shiva blesses Markandeya, let you be eternal. In other words, eternal रहने का मतलब कि आपका बहुत बहुत लंबे समय तक आपका जीवन होगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि जो यहाँ पांडवों से मिलने आते हैं, तो ये वो द्वापर युग में जन्मे मार्कंडेय नहीं है, वो त्रेता युग में भी थे। उन्होंने राम की लीला को भी देखा था। वो त्रेता युग के नहीं, वो सत्य युग के भी थे। और वो सत्य युग के नहीं, उससे 3 या 4 युग साइकिल पहले के एक युग में जन्मे मार्कंडेय ऋषि थे। तो आप सोच सकते हैं कितने वृद्ध होंगे। बट भगवान शिव ने उनको वरदान भी दिया था कि कभी आप बूढ़े नहीं होंगे। तो इस समय मार्कंडेय ऋषि पांडवों के सामने आते हैं और जैसी पांडवों की स्थिति को देखते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। सोचिए, आप बड़े दुखी हैं, आपके संग किसी ने बहुत बुरा करा है और सामने से कोई व्यक्ति आता है और आपको देखकर, आपकी स्थिति को देखकर मुस्कुराए, तो आपके मन में कैसा भाव आएगा? Any thoughts? How would you react to it? What would you think? Anguish. Hare Krishna. Sorry, can't you say that again? So anger, anguish or something like. मन में क्रोध जागेगा. There would be a frustration. उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि मार्कंडेय ऋषि उनको देखकर ना जाने क्यों ऐसे स्माइल कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, he understands who the मार्कंडेय ऋषि is, so he's surprised. So युधिष्ठिर महाराज बोल बैठते हैं मार्कंडेय ऋषि से, हे प्रभु, आप तो इतने बड़े संत हैं, हमारी दुर्दशा पे आप हंस रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसके पीछे कोई दिव्य कारण है? क्योंकि आप जैसा संत या ऋषि किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देखकर उस पे हंस नहीं सकता। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
हे पांडव, हे पंचाली और हे द्रौपदी, आप सभी को इस समय जंगल में इस प्रकार के वस्त्र इस अवस्था में देखकर मुझे त्रेता युग की याद आ रही है। और त्रेता युग में क्या हुआ था, तो बताते हैं कि कैसे त्रेता युग में मैंने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता को भी ऋष्यमुख पर्वत पर भटकते हुए देखा था। कैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता को भी धोखे से उनको उनके राज्य से 14 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया था। हे पांडव, तुम भी आज उसी ही स्थिति में हो। तुम्हें देखकर मुझे भगवान राम की स्थिति याद आई, तो उस चीज को सोचकर मैं मुस्कुरा बैठा। और ये कहते हुए यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे जाते हैं। और फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं पांडवों को, हे पांडव, कितनी अद्भुत दुनिया है ये। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अपने भविष्य को कंट्रोल में कर सकता है, पर क्या कोई व्यक्ति अपने आज के इस प्रेजेंट को भी कंट्रोल कर सकता है? और फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, नो मैटर हाउ पावरफुल ईच ऑफ अस मे बी, वी कैन नॉट अवॉइड द कैलामिटीज दैट अराइव थ्रू डेस्टिनी। हमारे डेस्टिनी में जो हमारे भविष्य में जो लिखा है वो हमारे संग होकर ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। ये डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी का मतलब है इज नथिंग बट इट्स भविष्य जो हमारा है वो हमारे आज और पहले के कर्मों का फल। द डेस्टिनी इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन एक्टिविटीज। तात्पर्य यही है, मार्कंडेय ऋषि बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। हर चीज, कोई अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, अच्छी दुर्घटना हो या बुरी दुर्घटना हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है? हमारे अपने कर्म। और उसी प्रकार अगर आप महाभारत में देखेंगे, महाभारत में भी एक ऐसी कहानी आती है जिसको आज इस महाभारत की कहानी में अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण किसी प्रकार की दुविधा में पड़ना पड़ा था। याद है आपको कौन कैरेक्टर है वो जिसको अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण इस जन्म में कठिनाई झेलनी पड़ी थी? Anyone remembers that personality? We discussed in detail about that personality. द्रौपदी। Yes, द्रौपदी। जब द्रौपदी को पता चला कि उसको 5 पतियों से शादी करनी है तो कितनी दुखी हुई थी द्रौपदी। जब व्यासदेव जी आके समझाते हैं, द्रौपदी दुखी मत होइए, ये आपके इस जन्म का कर्म का फल नहीं है, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि कैसे आपने पिछले जन्मों में भगवान शिव की आराधना करके आपको इस प्रकार का वरदान मिला था। इस प्रकार जब व्यक्ति के संग बुरा होता है, कुछ दुर्घटना घटती है, तो कई बार लोग बोलते हैं मेरे संग क्यों इतना बुरा हुआ है, Why I am so unfortunate। Sometimes लोग बात करते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस, मुझे विक्टिम बनाया गया है। हम अपने गीता लाइव सेशंस में जब इस कोरोना पीरियड से पहले कर रहे थे तो हम भगवद गीता से बात कर रहे थे कि कैसे विक्टिम मेंटालिटी कुछ नहीं होती, कोई विक्टिम नहीं होता, किसी को विक्टिम बनाया नहीं जाता, हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है। उसी प्रकार यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे पांडवों जैसा शक्तिशाली क्यों ना हो, वो भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे, अर्थात जैसा सीड, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष निकलेगा या वैसा ही फल प्राप्त होगा। आगे कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, नो वन therefore should ever act unrighteously thinking I am all powerful। वही चर्चा हो गई दोबारा, धर्म या अधर्म। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। क्यों मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज ने गलती तो करी थी जुआ खेलकर, और उसी कारणवश आज उनकी ये स्थिति हुई है। तो इस समय युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न पूछ बैठते हैं, क्या आप हमें रामायण के बारे में थोड़ा बताएंगे, भगवान राम के बारे में थोड़ा बताएंगे? आपने तो भगवान राम के साक्षात दर्शन लिए थे। तो इस समय मार्कंडेय ऋषि पांडवों के संग कुछ समय के लिए रुकते हैं और संपूर्ण रामायण
युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। वो सेक्शन में आपके संग चर्चा नहीं करूंगा, वो अलग ही डिस्कशन है। हम महाभारत पे टिके रहेंगे। अब आगे चलते हैं क्या होता है। तो कुछ समय के बाद मार्कंडेय ऋषि पांडवों से आज्ञा लेते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। बताया जाता है मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, उनको वरदान मिला हुआ है और आज भी वो यहीं किसी ब्रह्मांड में इस धरती पर आज भी घूम रहे हैं। तो इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं। पांडव अपना जीवन वन में बिता रहे हैं और सब पांडवों में अगर सबसे अधिक कोई खुश है, if one person who is really happy and enjoying his life in the forest, वो है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मणों का संग बड़ा ही पसंद था। उनके संग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पे चर्चा करने का उनको मौका मिलता था। अनेक पुराणिक कहानियां सुनने का मौका मिलता था। कई प्रकार के प्रश्न किया करते थे। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को जंगल में रह के ना किसी प्रकार का मैनेजमेंट है, ना किसी प्रजा की परेशानी को सुलझाना है, ना ही राजपाट की कोई सेवा है, ना उस प्रकार की स्थिति में रहना है। बड़ा सरल जीवन है, ब्राह्मणों के संग में रहना है। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े ही प्रसन्न थे और युधिष्ठिर महाराज की प्रसन्नता को देखकर एक व्यक्ति बहुत दुखी था। एक नहीं, दो व्यक्ति बहुत दुखी थे। एक तो द्रौपदी, दूसरा भीम। तो वन डे द्रौपदी को बहुत क्रोध हुआ, द्रौपदी को बहुत क्रोध आया और द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को डांटने लगी। आपको शर्म नहीं है? कैसे आपके कारण हम सब लोग यहाँ जंगल में बैठे हैं, हमारी स्थिति देखिए क्या है। आप कभी धर्म का पालन नहीं तोड़ सकते, मैं समझ सकती हूँ, बट अभी तो आप हमारी स्थिति को समझिए। आपको भीम नजर नहीं आ रहे? कितने क्रोधित हैं वो सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उसको इशारा दें और कैसे जाके वो कौरवों का सर्वनाश कर सकें। आप क्यों नहीं समझते स्थिति को? क्यों आप यहाँ पर जंगल में इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? लगता है कौरवों ने आपके संग जो भी गलत करा है आप उसको भुला चुके हैं, पर मैं नहीं भुला सकती। द्रौपदी यहाँ शांत होती हैं और भीम क्रोधित हो जाते हैं। फिर भीम बोलना शुरू करते हैं, कैसे भ्रातृश्री, कैसे हमारे संग अन्याय हुआ है, आप कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। काफी बड़ा लंबा चौड़ा संवाद होता है और संवाद खत्म होने के बाद कुछ ही समय में एक बहुत महान हस्ती पांडवों के बीच में पहुंचती है जिनका नाम था व्यासदेव। सडनली व्यासदेव वहां क्यों पहुंचे? आपको याद होगा हम जब पिछली व्यासदेव जी की यात्रा की चर्चा कर रहे थे तो कैसे व्यासदेव बद्रीनाथ में बैठे हुए अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है। उनको नजर आते हैं कि कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, दुर्योधन किस प्रकार से पांडवों पे हमला करने वाला है। तो व्यासदेव जी उसी समय वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार आज भी कुछ ऐसा हुआ पांडवों के बीच में। जब भीम उस प्रकार से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम और द्रौपदी को संबोधित करते हुए बताना और बात करनी शुरू करी। उन्होंने धर्म के अनुसार, नियमों के अनुसार चर्चा करते हुए उनको शांत किया, उनको समझाया कि कैसे फॉरगिवनेस, क्षमा एक बहुत बड़ा धर्म है और एक राजा को या जो धर्म में विश्वास करता है उस व्यक्ति को कभी भी क्षमा का जो धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उस प्रकार से फॉरगिवनेस पे बहुत ही खूबसूरत चर्चा होती है। उस डिटेल्स में तो हम नहीं जा सकते यहाँ पर। उस होल चैप्टर जिसका टाइटल है मॉरल इंस्ट्रक्शंस बाय युधिष्ठिर महाराज, तो फॉरगिवनेस पे बड़ी विस्तार से चर्चा होने के बाद जब भीमा और द्रौपदी का क्रोध शांत हो जाता है तो उस समय युधिष्ठिर महाराज एक बात कह बैठते हैं जिस कारण पांडवों का सारा जो एक उत्साह होता है कौरवों से युद्ध करने का, बदला लेने का, वो सारा उत्साह खत्म हो जाता है। सारे के सारे पांडव घबरा जाते हैं और चिंता में बैठ जाते हैं कि सही कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, हम कौरवों से कभी नहीं जीत सकते। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा कि उससे इवन भीम भी घबरा गए। और उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे भाइयों, हे द्रौपदी, आप ये समझने का प्रयत्न करिए कि हमारे दुश्मन कौन है। हमारे सामने भीष्म पितामह जिनको कोई कभी हरा नहीं सकता, वैसे ही द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही कृपाचार्य हैं। इन तीनों को ना ही कोई कभी हरा सकता है, ना ही कोई इनको मार सकता है। इन तीनों को ही वरदान मिला है। फिर बाकी अश्वत्थामा, कर्ण और बाकी लोगों का कहना ही क्या।
आप बताइए, अगर आप ऐसे योद्धा के संग युद्ध लड़ेंगे जिनको आप कभी मार ही नहीं सकते, हरा ही नहीं सकते, तो आप यो युद्ध कैसे जीतेंगे? और फिर दूसरी बात कही, जिससे जो बचा कुचा उनके अंदर उत्साह था पांडवों के अंदर, वो भी टूट जाता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, सहदेव, आप ही बताओ, क्या आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने गुरुवर, अपने परमपिता भीष्म, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर भीष्म पितामह की हत्या करोगे? तुम्हें लगता है ये तुमसे हो पाएगा? तुम एक ब्राह्मण द्रोणाचार्य कृपाचार्य की हत्या करोगे? जब युधिष्ठिर महाराज ऐसे बात कहते हैं तो सारे के सारे पांडव निराश हो जाते हैं और वो सोच में बैठ जाते हैं कि हाँ, युधिष्ठिर महाराज सही कह रहे हैं, हम तो पहली बात कभी उनसे युद्ध लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उनको हरा नहीं सकते, और दूसरा, अगर हुआ भी तो मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध करूंगा? पॉसिबल नहीं है। व्यास देव जी समझ जाते हैं कि पांडवों की स्थिति क्या है। उनको पता चलता है कि व्यास देव, पांडव किस प्रकार से सब निराश हो चुके हैं, तो उनकी निराशा को खत्म करने के लिए व्यासदेव जी आते हैं। और यहाँ पे व्यासदेव जी आकर पांडवों से उनसे बात करते हैं कि उनको अपने आगे का जीवन जंगल में कैसे बिताना चाहिए। उससे पहले व्यासदेव जी पांडवों से क्या कहते हैं, उनको क्या शिक्षा देते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से, ये प्रश्न है कि आपको युधिष्ठिर महाराज ने दो चीजें कही अपने पांडवों से और द्रौपदी से, कि कैसे हम उनको नहीं हरा सकते क्योंकि उनके पास ऐसे योद्धा हैं जो कभी हार ही नहीं सकते और मारे नहीं जा सकते। दूसरा, हम अपने सगे संबंधियों, ब्राह्मणों और अपने गुरुवर की हत्या कैसे कर सकते हैं। इस चीज को सुनकर आपको युधिष्ठिर महाराज के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त होता है? In other words, what do you think about Yudhishthira Maharaj? What do you understand about Yudhishthira Maharaj on this? Anyone wants to speak up? Or anyone wants to type in? What is your thought? What do you learn about Yudhishthira Maharaj? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, इनफैक्ट जानबूझकर पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग अज्ञानता के कारण ये बोल बैठते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे 60 करोड़ लोगों की हत्या उसके जिम्मेदार युधिष्ठिर महाराज थे, उसके जिम्मेदार कृष्ण थे, उसके जिम्मेदार अर्जुन थे। अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वो इतने मोहित थे, उन्होंने युद्ध किया। वेल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था, और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर कैसा था। Anyone would like to speak? I don't know. How do I know? Prabhuji. Speak up. Yes, please. Who is that? Speak up. Say your name. Prabhuji, I think that Yudhishthira Maharaj, he did not knew about the soul. Like we are not the body and we the soul. All right. Thank you. And he cared about the superior. Okay. Thank you. Yes, Kushaji, you were saying something. Yeah, Prabhuji. It seems इससे हमें यही पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज was सब कुछ अपना खो देने के बाद भी he is more concerned about his relatives, about how he cannot mistreat them, and अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वो इनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। Okay. Anyone else? Thank you. Anyone else want to share their thoughts? Hare Krishna. Hare Krishna. I'm Pandavati Kripa Devi Dasi from Delhi. Yes, Mataji. Dandavat Pranam, Prabhuji. Dandavat. A nice lecture. Prabhuji, I think because that's the reason he's called Dharamraj Yudhishthira Maharaj, because he was the one who is known for righteously, following and practicing what is right dharma. Yes, thank you so much. What else? There are more things to add to it. आप लोग सही direction में हैं. Very nice. Some messages are there. Okay, let me just see. Shivam, no interest in wealth and in the position of king. Book Junction. I believe this is our Jai, or maybe. He is tolerant and confident. Ranjitha, he is emotional. Bhavana, he cares about loved ones as known, otherwise there will be huge loss and self-pain. Okay. Any other concluding thoughts? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Maika ji. मुझे लगता है कि वो
धर्मराज थे, पर एक्चुअल में उनको रियल धर्म क्या है वो नहीं पता था, और बस वो अपनी ड्यूटीज करते जा रहे थे, और क्या सही है क्या गलत है इसकी उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। भले ही वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, कृष्णा को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनकी ही मेन ये जो उनको धर्म का ज्ञान नहीं था, उसी वजह से ही ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती चली गई। और मेन प्रॉब्लम वही है क्योंकि उनके भाई उनके आगे फिर नहीं बोल पाए, और वो अपने गलत धर्म के कारण कि मैं सही क्या है गलत क्या है उस चीज को वो रोक नहीं पाए, और वो कंटिन्यू होता चला गया। Okay, thank you, all valuable inputs. I'll share my few thoughts on it. अगर आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज ने कभी नहीं कहा पांडवों को, और अंत में भी देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को जब भेजते हैं फॉर पीस मिशन, उस समय यही कह के भेजते हैं कि कम से कम हमें कम से कम धृतराष्ट्र को 5 गांव तो दे देने चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपनी सेवा को नहीं त्यागना चाहते थे। माना उनका स्वभाव नहीं था वो राजपाट करना, वो संतुष्ट थे, बट क्योंकि वो उनकी सेवा थी, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण उनका समाज के प्रति वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टिल ही डिडंट वांट टू गिव इट अप। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहली चीज आप इससे इतना तो समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध के लिए कभी इच्छुक नहीं थे। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज किसी भी प्रकार किसी को हानि पहुंचाकर सारा का सारा जो उन्होंने खोया था वो प्राप्त नहीं करना चाहते। और तीसरा, इतना तो साफ पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज को जरा सी भी आसक्ति नहीं थी राजा की गद्दी से या उसके ऑपुलेंस से। आप युधिष्ठिर महाराज की जगह यहाँ दुर्योधन को बिठा दीजिए और दुर्योधन के संग इतना बुरा होता तो आपको क्या लगता है दुर्योधन कहता? दुर्योधन कुछ नहीं कहता। दुर्योधन भीम की जैसे चीख रहा होता और पूरे इमोशन से भरा होता, बिल्कुल भी नहीं सोचता। अगर आप देखें तो युधिष्ठिर महाराज ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि पांडव कौरवों का सामना नहीं कर सकते। और दूसरा, क्या अर्जुन ने जब हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जाकर नहीं कहा था कि हे कृष्ण, मैं अपने भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य का वध कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने भी वही जाके बात कही थी। तो युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ पे 2 चीज कहते हैं पांडवों को, बिल्कुल सही कहते हैं। और इसलिए मैं यहाँ क्या पॉइंट लाने के प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उस राजा की गद्दी से डिटैच थे, उनको कोई आसक्ति नहीं थी। इसलिए वो दिमाग से सोच पा रहे हैं कि उनकी आज की स्थिति में, जैसे भीम कह रहे हैं कि छोड़िए वनवास छोड़ते हम जाके कौरवों पे हमला करते हैं, हम कौरवों को नहीं हरा सकते। उस बुद्धिमत्ता के कारण युधिष्ठिर महाराज सोच पा रहे हैं और अपने भाइयों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। अगर सोचिए, अगर युधिष्ठिर महाराज भी भीम के जैसे इमोशनल हो जाते और कहते कि हाँ हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, चलिए हम हमला करते हैं, तो क्या चांसेस थी उनकी जीतने की? ऑफ कोर्स, क्या होता नहीं होता बात अलग है। भगवान श्री कृष्ण रहते उनके संग तो बचते, फाइन, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज पांडव अपने बल पर कौरवों को नहीं हरा सकते थे, उनके पास वो क्षमता नहीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज was not attached to the position of the king, was not attached to the opulences and the privileges that position would bring it, इसलिए युधिष्ठिर महाराज एक रेशनल नजरिए से वो सोच पाए और अपनी स्थिति को सही मायने से माप पाए। और इसी चीज को समझते हुए व्यासदेव जी वहां आते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं पांडवों को, जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, आप इस स्थिति में कौरवों का हमला नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, मैं चाहता हूं कि आप में से एक भाई, व्यासदेव ने तो कहा था अर्जुन को, कहा कि आप अर्जुन को भेजिए इंद्रलोक भगवान देवताओं के पास, ताकि वो वहां से सारे के सारे सेलेस्टियल वेपन्स लेके आ सके। आप लोग जंगल में सिर्फ समय मत बिताइए, बट जंगल में रह के अपने आप को तैयार करिए। हे युधिष्ठिर महाराज, अब अधिक से अधिक यज्ञ करिए ताकि आप अपनी पार्टी को बढ़ा सकें। और व्यास इस प्रकार से सबको बता के जाते हैं हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि 13 साल के बाद आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे अभी से, तो आप कौरवों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म पितामह को आज की स्थिति में पांडवों के लिए हराना नामुमकिन था।
सो एक तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने जो कहा सही कहा, और उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको अपनी पोजीशन से कोई आसक्ति नहीं थी। और दुर्योधन अगर युधिष्ठिर महाराज की जगह पे होता तो वो ऐसी बात कभी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह अपने उस राजगद्दी से, या दुर्योधन या धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे। तात्पर्य यही है, जो व्यक्ति अपनी पोजीशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से जब आसक्त होता है तो वो अपनी बुद्धि खो बैठता है, वो अपने सोचने और विचार करने की क्षमता खो बैठता है। तो युधिष्ठिर महाराज इसलिए कभी भी वो एक प्रकार से देखा जाए तो गलत निर्णय नहीं लिया। हाँ, माना गैम्बलिंग मैच में गलती हुई थी, पर उसकी कंडीशंस भी थी, इसीलिए पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज को कभी त्यागा नहीं। अगर युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी धर्म का उल्लंघन करा होता तो कब के पांडव और द्रौपदी उनको छोड़ के चले जाते, पर कभी भी उन्होंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। स्थिति ऐसी थी कि उस स्थिति में उनको वो करना पड़ा, और स्थिति में वो कुछ गलतियां कर बैठे, तो पांडव भी समझते थे उनकी गलतियों का कारण क्या है, इसलिए उन्होंने हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करा। तो यहाँ पे व्यासदेव जी आते हैं, युधिष्ठिर महाराज को एक सीक्रेट मंत्र देते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको एक बहुत ही कहते हैं सीक्रेट को क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे हिंदी में, सीक्रेट मंत्र दे रहा हूं। ये सीक्रेट मंत्र आप अर्जुन को बताइएगा, और जैसे ही अर्जुन इस मंत्र का उच्चारण करेगा, he will literally fly in the sky. In other words, इस मंत्र के उच्चारण से अर्जुन मन की स्पीड पर दौड़ पाएगा, और उस प्रकार वो बहुत जल्द स्वर्ग पहुंच पाएगा, जहां देवताओं से उसका मिलना होगा, और उसको वहां जाकर हर प्रकार के सेलेस्टियल अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो सकते हैं। वो चीज बताकर युधिष्ठिर महाराज को मंत्र सिखाकर व्यासदेव वहां से चले जाते हैं। सोचिए, आपके पास कोई व्यक्ति आकर आपको ऐसा एक बहुत स्पेशल मंत्र दे के जाए, और बताए कि अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे आपके पास इस प्रकार की शक्ति आएगी, और साथ ही साथ उस शक्ति के साथ आप जाके देवलोक में जाकर देवताओं से मिल पाएंगे, आपका स्वर्ग लोक का आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा, आपके पास अनेक प्रकार की शक्तियां आएंगी। इन एसेंस you will become the most prominent and the most successful person in the world. अगर हमें ऐसा कोई आके कहे और हमारे आगे पीछे 3-4 भाई बहन हो, तो हमारे मन में क्या विचार होगा? और अगर जो व्यक्ति हमें वो मंत्र दे, वो कहे कि ये मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, बट ये मंत्र आप अपने छोटे भाई को दीजिएगा, क्योंकि छोटा भाई आपसे काफी निपुण है, वो इस मंत्र को ढंग से धारण कर पाएगा और उसका उपयोग कर पाएगा। आप में से कितने लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, अरे मैंने क्या गलत करा है भाई, मैं क्या किसी से कम हूं? सारा सम्मान, सारी की सारी सफलता मेरे छोटे भाई को मिलेगी, और क्या पता कल जाके अगर वो मुझसे द्वेष कर बैठा तो उसने कल मेरे राजा होने की पोजीशन पे भी अगर प्रश्न उठा दिया, क्योंकि वो अगर सारे सेलेस्टियल वेपन्स लेके आएगा तो मुझसे तो अधिक शक्तिशाली बनेगा, तो हो सकता है कल वो मुझसे मेरा हक भी छीन ले। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज सोच सकते थे कि क्यों अर्जुन को ही सारी की सारी सफलता प्राप्त हो, घर में सबसे बड़ा मैं हूं और मैं धर्म के पालन में भी सबसे निपुण हूं, तो व्यासदेव ने मुझे क्यों नहीं चुना है, और क्यों अर्जुन को ही मौका मिलेगा कि वो देवलोक में जाके देवताओं से मिलकर आए, स्वर्ग में रह के आए, इसका मतलब है वो मुझसे अधिक होंगे। और युधिष्ठिर महाराज एक पल को भी इस चीज के बारे में नहीं सोचते, उनको एक प्रकार का भी भय नहीं था कहीं ऐसा ना हो अर्जुन कल मुझसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण मुझे राजा की गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाए। इज इट अ वैलिड फियर बाय द वे? या आपको लगता है प्रभु जी कुछ भी ऐसा थोड़ा होता है? भाइयों बहनों के बीच में इतना सगा संबंध होता है, पूर्ण रूप से भरोसा होता है, और जब ऐसी बात है कि सिंहासन विश्व का सम्राट चक्रवर्ती बनने की, तो जरा सा भी भय नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे उनके मन में हल्का सा भी हिचकिचाहट नहीं है, उनके मन में हल्का सा भी संकोच नहीं है अर्जुन के प्रति, अर्जुन की अपने प्रति उनके प्रेम के ऊपर कोई शंका नहीं है। आपको इससे युधिष्ठिर महाराज के बारे में और युधिष्ठिर और पांडवों के रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है? व्हाट कैन बी इन्फर? कि जहां युधिष्ठिर महाराज हल्का सा भी शंका नहीं है,
Because of his detachment. Huh? Because he was detached from all the worldly things. He was detached from the worldly things. Okay, but इतना भरोसा करना, I mean worldly things से detach होना तो ठीक है, but हर एक के मन में at least इतनी तो इच्छा होती है कि अगर मैं बड़ा हूं तो सम्मान पहले मुझे मिलना चाहिए, या मुझसे अधिक सम्मान मेरे छोटे भाई को मिलेगा। इतना फॉल्स ईगो भी ना होना तो बहुत ही अलग बात है, ये तो बहुत ही रेयर केस है। Anything else? Any other inferences? No envy, Prabhuji. Yeah, no envy, but this is possible. ऐसा कभी पॉसिबल है इस दुनिया में जहां आप रह रहे हैं कि किसी के बीच में कोई एनवी ना हो, द्वेष ना हो? कहना आसान है नो एनवी, बट नो एनवी का कभी कोई सैंपल देखा है क्या दुनिया में? Yes, Prabhuji. What else? Prabhuji, actually, one thing I feel we can infer is Yudhishthira Maharaj's understanding that Vyasdev, if Vyasdev is saying, he is saying it with an understanding and he is the superior. So, Great. keeping everything aside. But there would be a sense of insecurity or not? अगर हम युधिष्ठिर महाराज की जगह पे होते तो हमारे मन में इनसिक्योरिटी होती नहीं होती? ये सोचकर कि कल आगे जाकर मेरा छोटा भाई मुझसे अधिक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन जाएगा, देवता उसको पर्सनली जानेंगे, उस पे सारे सबसे सेलेस्टियल वेपन उसके पास होंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। इनसिक्योरिटी आना तो वाजिब बात है। Yes. Can I say? So I guess because they're all pure devotees, this can happen only amongst pure devotees, that they don't think like that. So more than being, younger brother or something, he looked at him as a Krishna's pure devotee, and so hence he was not. Okay, so again an extreme end, because they are pure devotees, तो उनके बीच में ऐसा नहीं हो सकता. Fine. Any other inference for practical application? आप जो सब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आप इससे क्या समझते हैं? What lesson do you derive for your personal application? That when some opportunities come our way and we feel that are coming our way, but are ultimately handed over to someone else, we should consider it as that is how it is meant to be, and we should not be envious of the other person who gets the opportunity. Okay. Thank you. Very nice. Anyone last comments? Also the bond between the brothers. No, bond and all that is fine. How much? There is no pure love if you say in one thing, in one way. You know, हर कोई व्यक्ति कुछ भी हो अपने बारे में तो सबसे पहले सोचता है. You know, everyone has some interest. So the key point, at least how I looked at the situation, यहाँ युधिष्ठिर महाराज के मन में हल्का सा भी हिचकिचाहट नहीं है. ऐसा केवल स्पिरिचुअल कल्चर में पॉसिबल है. इन अदर वर्ड्स, जहाँ पे सब लोग अगर भगवान की भक्ति से जुड़े हों, वहीं पर इस प्रकार का ऐसा संबंध हो सकता है. ऑफ कोर्स हमारे जीवन इस प्रकार का संबंध होना, उसमें समय लग सकता है, बट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जहाँ पे लोगों के बीच में द्वेष की भावना ना हो, वो केवल एक स्पिरिचुअल कल्चर और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है. जो लोग आध्यात्मिक शिक्षाओं से या जो स्पिरिचुअल कल्चर का पालन कर रहे हैं, उन्हीं को इस प्रकार के संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. इन एसेंस, if there is God consciousness, if there is Krishna consciousness, only then such dealings are possible. Otherwise, it is all theory. It is just not possible. तो अगर आज की दुनिया में अगर किसी चीज की कमी है, श्रीला प्रभुपाद कहते थे, अगर आज की दुनिया में किसी चीज की कमी है, वो किसकी है? गॉड कॉन्शियसनेस या कृष्ण कॉन्शियसनेस. उसी के कारण आज घर, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे माता पिता, या देश के बीच में, पूरे संसार में जो भी आज झगड़ा है, जो भी द्वेष है, उसका प्रमुख कारण क्या है? Because there is a lack of God consciousness. तो जितना हम ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में लाते हैं और जितना उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम दूसरों में देते हैं, उतना हम इस दुनिया से ये द्वेष जैसी भावनाएं, इनसिक्योरिटी जैसी भावनाओं को खत्म कर सकते हैं.
तो यही मैं एक सार इससे डिस्कस करना चाहता था. आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस. यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को ये सीक्रेट मंत्र देते हैं. And now begins a very, very adventurous journey. At least this is one of my best parts of Mahabharata. Why? I'll tell you in a short while. बाकी सब is a routine story, but this is where it becomes very adventurous. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को मंत्र देते हैं और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, धौम्य ऋषि को प्रणाम करते हैं और सभी भाइयों को प्रणाम करके अपने गांडीवा बो, अपने आर्मर और अपने कुवर्स के संग तैयार होकर उस मंत्र का उच्चारण करते हुए चल पड़ते हैं. जैसे ही अर्जुन उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ही इज नॉट वॉकिंग नाउ, ही इज लिटरली रनिंग, ही इज जंपिंग एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ माइंड. और एक ही दिन के अंदर ही ट्रेवल्स hundreds and thousands of miles of distance and he reaches at the foothill of a mountain called as Mandar mountain. So by the way, आप में से कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं? Because now for the next few episodes, I'm going to talk in details about Badrinath. And that's the reason I said this is my favorite part of Mahabharata. So how many of you have been to Badrinath? I see some of you. No, Prabhuji, I did not. Okay. Only few of you I can see right now here. Okay, great. So अभी now पांडव लोग अपने जीवन का कम से कम वनवास का अगला 10 साल, 8 से 10 साल बद्रीनाथ के आसपास इलाके में ही बिताने वाले हैं. तो यहाँ पे वो मंदार माउंटेन पे पहुंचते हैं, मंदार माउंटेन के फुट हिल पे पहुंचते हैं जो ऑलरेडी हिमालय रेंज पे है, बहुत ऊंचाई पर है. और जैसे ही वहां पर अर्जुन पहुंचते हैं, अर्जुन इज सरप्राइज, अर्जुन इज टोटली शॉक्ड. उन्होंने ऐसा खूबसूरत माहौल, इतनी खूबसूरत दृश्य आज तक नहीं देखा. Everywhere that mountain range, that Mandar mountain range is covered with lush green trees. और हर वृक्ष पे अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के फल हैं और अलग अलग कलर्स के फूल हैं. और उन फूलों से आने वाला सुगंध इतना मोहित करने वाला है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे हो तो अपने जीवन के सारे दुख और शरीर के सारे कष्ट को भुला दे. उस प्रकार का आनंद अर्जुन को होता है. And Arjun becomes so excited and so joyful at that place. और केवल वहां पे वही नहीं, वहां पे कई प्रकार के झरने हैं, लेक्स हैं, तो वहां पे अनेक प्रकार के पक्षी, पिकॉक्स, स्वैन्स एंड कुकूज वहां पर हैं. उस समय अर्जुन सोचते हैं कि रात का समय होने वाला है, क्यों ना मैं इस पहाड़ पे चढ़कर आज रात मैं इस पहाड़ पे बिताता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. तो उस पहाड़ पे अर्जुन चढ़ना शुरू करते हैं और कुछ समय में ही उस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्जुन पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं. और जैसे उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं मानो जैसे उस पूरे पृथ्वी का दर्शन कर पा रहे हों. और वहां पे पहुंचते ही अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तुरंत ही उनको एक आवाज सुनाई देती है जो बोलता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन बड़े परेशान होते हैं. अर्जुन पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत, बहुत विशाल वृक्ष है. उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक सन्यासी है, बहुत effulgent सन्यासी. There's a beautiful aura all around that सन्यासी. And बहुत खूबसूरत मुस्कान उसके चेहरे पे है. और वो सन्यासी हो या मॉन्क कहिए, वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आप यहाँ क्यों आए हो? और यहाँ पे अस्त्र शस्त्र की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है. इनफैक्ट अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हो, उसको सब प्रकार का निवारण मिल जाता है. तुम ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां पहुंचने के बाद तुम्हारी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो विफल होगी. इसलिए बिकॉज यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, तुम अपने जीवन के सफलता को पा चुके हो, इसलिए इन सब अस्त्र शस्त्र को त्याग दीजिए एंड नाउ एंजॉय योर लाइफ forever in this beautiful place. And it was in fact really a very very beautiful place. बहुत खूबसूरत वर्णन आता है महाभारत में उस जगह का. तो उस समय अर्जुन को इतना टेम्पटिंग ऑफर मिलता है वहां पे उस जगह पे रहने के लिए. तो अर्जुन बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, बोलते हैं, हे ऋषिवर, मानता हूं कि मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है
पर फिर भी मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरे भाई और मेरे पत्नी के दुख के बारे में सोच कर अभी भी शांत नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स, आई कैन नॉट फॉरगेट जो दुख कौरवों ने मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज, मेरी पत्नी और द्रौपदी को दिया है, इसलिए मैं शांति से यहाँ रह के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आई हैव कम हियर ऑन अ मिशन, और जब तक उस मिशन को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, मैं एक पल शांति से नहीं बैठने वाला। जब मैं इस किस्से को पढ़ रहा था तो मुझे प्रभुपाद के बारे में याद आ रहा था, शिला प्रभुपाद के बारे में। कैसे शिला प्रभुपाद वृंदावन में अपनी फैमिली से संन्यास लेकर वृंदावन में बैठे हुए हैं, वृद्ध हो चुके हैं। एक तरीके से भक्त के लिए वो जीवन की सफलता है कि पूरे फैमिली का देखभाल करने के बाद अब वृंदावन में जाके रिटायर हो और आखिरी जीवन के आखिरी समय वहां बिता सकें। पर शिला प्रभुपाद वाज नॉट डूइंग लाइक दैट। शिला प्रभुपाद वृंदावन में बैठकर वो ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसे इस अद्भुत जगह पर बैठकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। पर शिला प्रभुपाद वाज वरिड, वाज पेन्ड बाय द एंजाइटी ऑफ हिज गुरु। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक एंजाइटी थी कि इस धरती पर रहने वाले लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। और उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा था कि आप विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिएगा। तो शिला प्रभुपाद वृंदावन में भी बैठे हुए, जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अभी बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे भाई ने मुझे किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि मैं यहाँ वृंदावन में रुकने के लिए नहीं आया हूँ। वृंदावन में आकर मैं यहाँ से दुनिया भर में जाकर अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ। उस चीज को जब ये साधु अर्जुन से इस बात को सुनता है, उनके दृढ़ निश्चय को सुनता है, तो साधु बड़ा खुश हो जाता है। और अर्जुन की आंखों के सामने सामने वो साधु अपना वेश बदल देता है और नाव अर्जुन के सामने उनके पिता श्री भगवान इंद्र खड़े हुए हैं। और जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि अरे वो कोई सन्यासी नहीं, वो तो इंद्र हैं, इंद्र देवता हैं, अर्जुन बड़े ही खुश हो जाते हैं और वहीं पर इंद्र के सामने प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगते हैं और उनको बताते हैं कि वो क्यों आए हैं और कैसे वो इंद्र से मिलकर बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए ताकि आप मुझे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे सकें, ताकि उस अस्त्र शस्त्रों से मैं अपने भाई और अपनी पत्नी पे हुए बेइज्जती का बदला ले सकूं। सो उस समय इंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझसे क्यों ये अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मांगते हो? अगर चाहते ही हो तो why don't you ask me for the life among the celestial? तुम अगर यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो आओ, मैं तुम्हें इंद्र लोक स्वर्ग लोक में ले जाता हूँ और तुम्हें वहां का निवासी बना देता हूँ। जीवन भर आनंद में जीना, क्यों तुम धरती पे जाकर दोबारा से दुख भोगना चाहते हो? And Arjuna said the same thing. My dear father, my dear Indra, I cannot do this. I have a mission to fulfill. So इंद्र उस चीज से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने भाई, अपनी पति और अपनी माता के प्रति कृतज्ञता की भावना को नहीं त्यागा है। You are still grateful to them and you want to serve them. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार से तुम्हें celestial weapons मिलेंगे। तो उस समय हमारे इंद्र कहते हैं कि आप यहाँ पर रहिए कुछ समय और तपस्या करिए, भगवान श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करिए। जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते तो उनसे उनका पशुपति अस्त्र मांगिएगा और जब वो अस्त्र आपको मिल जाए तब मैं आपको खुद स्वयं इंद्र लोक लेने के लिए आऊंगा और उसके बाद मैं आपको वहां पे सभी अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वो कहते ही इंद्र वहां से चले जाते हैं और अर्जुन कठिन तपस्या में लग जाते हैं, बहुत बहुत कठिन तपस्या करते हैं। और ये खूबसूरत दृश्य है जो एक मंदिर की दीवार पे बना हुआ था, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। जैसे हम दिखा रहे हैं कि कैसे अर्जुन एक पैर पे खड़े होकर अगले 6 महीने तक कड़ी तपस्या करते हैं और उस समय भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर अर्जुन से मिलने के लिए आते हैं
तो जैसे ही भगवान शिव वहां पर पहुंचते हैं मंदार पर्वत की तरफ, और अर्जुन अपनी आंख बंद करके कहते हैं सीवियर पेनेंस, सीवियर तपस्या कर रहे हैं, उसी समय वहां पर एक राक्षस आता है जो एक बोर का रूप लेकर या कहिए सुअर का रूप लेकर अर्जुन के सामने चीखता हुआ अर्जुन पे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। अर्जुन अपनी आंख खोलते हैं, देखते हैं अरे ये कैसे एक राक्षस और कैसे एक जानवर मेरे पे हमला करने के लिए आ रहा है। तो वो अर्जुन उस समय अपना धनुष उठाते हैं, बाण लगाकर उस पर हमला करने वाले होते हैं। उसी समय भगवान शिव एक हंटर का रूप ले लेते हैं, एक जंगली या हंटर क्या कहेंगे, हंटर का रूप ले लेते हैं, और वो भी अपना धनुष बाण उड़ा के उस जानवर पे निशाना बांधते हैं, और दोनों एक ही समय पे बाण छोड़ते हैं, और एक समय पे जाकर उस जानवर को लगता है और जानवर अपना प्राण त्याग देता है, और राक्षस का असली रूप उसका आ जाता है। उस समय अर्जुन बड़े क्रोधित होते हैं, बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि now he cannot see Lord Shiva because Lord Shiva had taken a form of a hunter. Arjuna said, "Who are you? How dare?" तो उस समय की सभ्यता के अनुसार अगर जंगल में कोई क्षत्रिय इस प्रकार से हंटिंग करता हो तो दूसरा व्यक्ति उसके शिकार को हमला नहीं कर सकता। अगर करे तो उससे क्षत्रिय का बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो अर्जुन कहता है, "How dare you shoot an animal who I saw first?" Hunter, as Lord Shiva began to laugh, and he said, "How dare you shoot an animal who I saw first?" And because of this argument, Arjuna said, "Oh, how dare you to challenge me, and now I'll fight with you." इस प्रकार से भगवान शिव और अर्जुन के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध होता है। अर्जुन हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं, यहाँ तक कि जो सूर्य देवता से अग्नि देवता से मिला हुआ क्विवर है, which was supposed to be inexhaustible quiver, उस क्विवर से धनुष खत्म हो जाता, बाण खत्म हो जाते हैं। अर्जुन को क्रोध आता है तो अपना गांडीवा बो लेकर उस हंटर की तरफ दौड़ते हैं, हंटर पे मारते हैं तो उनका गांडीवा बो गायब हो जाता है। तलवार निकालकर तलवार चलाते हैं तो तलवार गायब हो जाती है। फिर उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो हाथों से एक दूसरे को घुसा मारकर एक दूसरे पे हमला करके खूब देर तक युद्ध चलता है, और अर्जुन पूरे परेशान हो चुके हैं, ये कौन है हंटर, मैं इतना घूसा मार रहा हूँ, इतनी लातें मार रहा हूँ, उसको कोई असर नहीं हो रहा, और इस हंटर ने मुझे एक झापा मारा है और मुझे दिन में तारे नजर आ गए हैं। एंड लाइक दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉर्ड शिवा गिव्स हिम अ वन टाइट पंच। उस पंच से खाकर अर्जुन बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ते हैं। एंड अर्जुन्स बॉडी इज कंप्लीटली वुंडेड। महाभारत में इस प्रकार का वर्णन आता है। कुछ समय के बाद अर्जुन को होश आता है और कहता है, अरे इस व्यक्ति से तो मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। उस समय वो वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके शिवलिंग की भगवान शिव की आराधना करना शुरू करते हैं, और वहां पे उनके ऊपर कुछ वो फूल फल चढ़ाते हैं जो आप बराबर में पड़े होते हैं। जैसे ही वो फूल अर्पण करते हैं भगवान शिव की शिवलिंग पर, वो फूल शिवलिंग पे ना पड़ के उड़ते हुए हंटर के सिर पर गिरने शुरू हो जाते हैं। जब अर्जुन वो ये देखते हैं तो फिर अर्जुन को समझ आता है ये कोई हंटर नहीं, ये साक्षात भगवान शिव है। भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं, अर्जुन से बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या प्रार्थना कर सकता, तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो जैसे हमने कल बात करी थी, भगवान शिव बार बार महाभारत की कथा में आते हैं, साथ ही साथ इंद्रदेव के बारे भी बार बार कथा इंद्रदेव की महाभारत में आती है। तो एक और बार भगवान शिव का महाभारत में वर्णन आता है। उस समय अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका कोई सामना ना कर पाए और उससे पूरे दुनिया का भी ध्वंस हो जाए। उस समय भगवान शिव कहते हैं, मैं आपको अपना सबसे प्रिय पशुपति अस्त्र देता हूँ। जिसको भी इस अस्त्र या शस्त्र का ज्ञान है, जो भी कोई इसको यूज करेगा उसके सामने कोई भी देवता, कोई भी राक्षस, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। बट मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, इस अस्त्र का उपयोग किसी कमजोर व्यक्ति पर मत करना, वरना पूरा संसार ध्वंस हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। भगवान शिव उनको पशुपति अस्त्र, उसका मंत्र देकर भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही शिव जी वहां से जाते हैं, सारे के सारे अनेक प्रकार के देवता, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि, सब लोग वहां पर आते हैं, यमराज सब आते हैं
और सब अर्जुन से बड़े प्रसन्न होकर। ना ये बताइए सब देवता लोग अर्जुन से इतने प्रसन्न क्यों थे? उनकी प्रसन्नता का प्रमुख कारण क्या था? उस चीज को सुन के मेरा समय हो चुका है, सॉरी आई एक्सटेंडेड टुडे, हम 10 मिनट ऊपर चले गए। We'll pause here for today. Why all the devatas were so happy with Arjuna? ऐसा क्या था अर्जुन के पास because of which everyone was so happy? और सब देवता अर्जुन को अपने अस्त्र या जो कहो शस्त्र देने को इतने इच्छुक थे। Everyone came, यमराज, everyone came, इंद्र, सब ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दे दिए। Why? What was the reason? Anyone knows? Yes, Chitra. Can't hear you. Okay, anyone else? Any guesses? Why? Because Lord Krishna wanted them to establish dharma, so they were given all the possible help from all the demigods. Okay, what else? All right. The main reason is because all the devatas, everyone knew who Arjun was. Arjun was not a son of Indra. Arjun was an eternal associate of Lord Shri Krishna. ये वही अर्जुन है जो पिछले अवतार में नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे। और ये कहिए नर नारायण ऋषि अब इस रूप में नर जो था वो अर्जुन के रूप में आए हैं, और नारायण तो भगवान है, वो कृष्ण अपने स्वयं रूप में आए हैं। इसलिए सब जानते थे कि अर्जुन कौन है। अर्जुन कोई आम मनुष्य नहीं थे, पर वो भगवान के इटर्नल पार्षद हैं। उस चीज को जानते हुए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए, और उस समय इंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो चुकी है, सभी देवताओं की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो चुकी है, आप इंद्र लोक आने के काबिल हैं। मैं आपको कुछ समय में अपना रथ और अपने सारथी मैथिली के संग आपको इंद्र लोक बुलाने के लिए अपना रथ भेजूंगा। आप कुछ देर के लिए इंतजार करिए, और कुछ समय में मेरा रथ लेकर मेरा सारथी मैथिली आपके पास आपको मिलने के लिए आएगा। और इसके बाद शुरू होती है, अभी तक अर्जुन की जर्नी रही थी पर्वतों पर हिमालय तक जाने की। अब इसके बाद आगे जर्नी आएगी अर्जुन की स्वर्ग जाने की, और उसमें कुछ बहुत ही अद्भुत चीजों का वर्णन होता है, जहाँ पे स्टार्स, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में चर्चा आती है, वो कौन है, वहां पे कौन रहते हैं, उस सब की चर्चा हम अब आगे आने वाले सप्ताह में अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी समय पूरा हो चुका है। मैं 10 मिनट आज गलती से आगे चला गया। So we'll discuss the rest of the story next time. What happened when Arjuna goes to heaven, or Arjuna goes to the Indralok, who all he saw in between. So आगे की सारी चीजें बाद में चर्चा करते हैं। I thought I'll be able to discuss about Arjuna today, but I couldn't. So with that, I pause here for today. आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई comments, we'll take it and then we'll conclude. So thank you all for joining us. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhagwan ki jai. 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 कि हम सब के लिए महाभारत की रचना करी। जय।